Hello students, now welcome to the Rashmi Singh classes. Today's topic is the Indian Constitution, third part. In the first and second part we have finished what is Constitution and why does a country need a Constitution and the key features of Indian Constitution. In this session we are going to study the fundamental rights and fundamental duties. So what are fundamental rights? Fundamental rights are the basic rights which is essential for our life. Essential for our life and these rights are given from our constitution. अब क्वेश्चन ये उठता है कि why these rights are given? जैसे कि मैंने आपको पहले सेशन में बताया था, we face some bitter experiences during the British rule. So avoid all that things. The Constitution gives us fundamental right for the overall development and well-being of the citizens. So these rights are known as fundamental rights. Clear? And these rights are given to each and every people irrespective of their caste, religion, gender. Means everybody will get these rights. Clear? Now we'll do one by one. First is right to equality. What does it mean? Equal before the law. Means every person is equal before the law. Rule of law was established by our constitution. President and the common people both are equal in front of law. Clear? It means. And equal opportunity for government jobs. Some seats are reserved for SCs, STs and OBCs. Equal opportunities for government jobs. Means in ancient time, like this SCs, STs, OBCs, they are not given the proper status or equal status in the society. So they were given the special privileges so that they'll get the equal opportunity for government jobs. Nobody can stop. You belong to this particular caste, so we are not going to give you this job. Nobody can stop. You have equal opportunity to get the government job. And these three communities, they get the reservations in these jobs in medical college and BTech college also. Clear? And untouchability will not be tolerated. Untouchability is abolished. क्योंकि untouchability एक आपका बहुत ही बुरा जैसे कहते हैं था हमारी सोसाइटी में, एक लोगों के अंदर एक इल फीलिंग्स आती है, तो उसको खत्म करने के लिए अनटचेबिलिटी विल नॉट बी टॉलरेटेड. मीन्स इट इज अबॉलिश्ड. and an equal access to public property means everybody has a right to access to the public property. Public property में आपके पार्क्स आ गए, आपके रोड्स आ गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, पिक्चर हॉल्स हो गए, जितनी भी चीजें हैं वो सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ गई, पब्लिक फैसिलिटीज में आ जाती हैं. और हर आदमी को इक्वल होने का हक है कि वो इन चीजों तक उसकी रीच हो. एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमको ये इक्वालिटी का जो स्टेटस था नहीं मिला हुआ था. आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो तीन हमारे मेरठ में बाजार हैं, सदर बाजार एंड आबू लैन एंड लाल कुर्ती. आबू लैन इज फॉर ब्रिटिशर्स एंड सदर बाजार फॉर द आर्मी पीपल, इंडियन आर्मी पीपल, एंड द कॉमन पीपल के लिए लाल कुर्ती बाजार था. हम कहीं और से सामान नहीं खरीद सकते थे. एंड माल रोड के ऊपर जो व्हीलर्स क्लब है उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, द इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड. मीन्स हमको किससे मापा जाता था या किस तरह देखा जाता था? डॉग्स की तरह हमको जाना जाता था. ठीक है. बट इन फ्री इंडिया वी गेट द इक्वल एक्सेस टू पब्लिक property. Clear? So this is the right to equality. Second is right to freedom. What does it mean? Freedom of speech and views. Means you are free to express your views and ideas. Because we are living in a democratic country, so we have given the right to express our views and ideas. In monarchy and dictatorship, we are not free. लेकिन अब हमें ये फ्रीडम मिली हुई है. एंड
to move or to go anywhere in the country. Means we are free to move from one place to another place in our country. कोई हमें रोकेगा नहीं, ठीक है. Settle in any part of India. It's our own wish. हम जिस भी पार्ट में इंडिया के सेटल होना चाहते हैं, we can settle. Even जो हमारी आर्टिकल 370 हटाई गई है, उसके बाद वी कैन बाय द प्रॉपर्टी इन कश्मीर एंड वी कैन सेटल डाउन इन कश्मीर ऑल्सो. क्लियर. एंड राइट टू असेंबल पीसफुल बट विदाउट आर्म्स. मीन्स आप पीसफुल प्रोसेशन है, असेंबली है, उसको असेंबल हो सकते हैं, बट आर्म्स आप साथ में अपने हथियार लेके नहीं चल सकते. क्लियर. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रीडम आपको ध्यान रखना है. फ्रीडम उसी लेवल तक लेंगे ताकि दूसरे लोगों की फ्रीडम में कोई खलल ना पड़े. अगर रात में 10 बजे के बाद आप डीजे प्ले करोगे तो इससे दूसरे की फ्रीडम खराब होती है, खत्म होती है, तो वो नहीं होना चाहिए. उसी लेवल तक हमें अपनी फ्रीडम को अवेल करना चाहिए कि दूसरे की फ्रीडम वॉयलेट ना हो. क्लियर. नाउ थर्ड, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. राइट टू फ्रीडम में ऑल्दो दे हैव गिवन द राइट टू रिलीजन ऑल्सो, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे रिलीजन को स्पेसिफिकली ज्यादा अच्छी तरह बताया है. राइट टू फॉलो एनी रिलीजन मीन्स बाय बर्थ you belong to a certain religion, but after when you grown up, so it's your own wish. If you want to change the religion, you can change, but nobody can compel you. Compel करके हम धर्म चेंज नहीं करवा सकते, but if it is your wish, you can change. Clear. And right to practice and propagate his or her religion. अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना और प्रोपोगेट करने का भी एक जो राइट है वो आपको मिला हुआ है. क्लियर. नाउ द फोर्थ इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. क्लियर. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स गवर्नमेंट ने हमारे लोग एक्सप्लॉयट ना हो, इसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड मिनिमम वेजेस. उन्होंने एक मिनिमम वेजेस को इम्प्लीमेंट किया है. जो जितने घंटे काम करेगा उतने घंटे के वेजेस उसको मिलेंगे. दिस इज फॉर एम्प्लॉयर कि एम्प्लॉयर को उतने घंटे के पैसे देने हैं, उससे कम नहीं देने. क्लियर. बैन चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग. बैन चाइल्ड लेबर मीन्स under 14 years of age children were not allowed employed in any factory. किसी भी फैक्ट्री में हम 14 साल से कम बच्चे को नहीं एम्प्लॉय कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन आजकल हमारे ढाबों पे बहुत सारे बच्चे एम्प्लॉयड रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट ऑल्सो. क्लियर. एंड द ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ह्यूमन ट्रैफिकिंग का क्या मतलब है? आदमियों की या इंसानों की खरीद फरोख्त. मतलब यहां से खरीदा और दूसरी जगह बेचा, और कई बार छोटे छोटे बच्चों को बेच के उनके बेगिंग के लिए उनको कंपेल किया जाता है. फोर्स लेबर के लिए उनको कंपेल किया जाता है. तो उन सब चीजों पे उन्होंने बैन लगा दिया है. ये राइट है, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन. टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम एनी एक्सप्लॉयटेशन, गवर्नमेंट implemented minimum wages and banned child labor and human trafficking. Clear. Now fifth is cultural and educational right. Because we know that India is a very vast country and so many communities, religious communities and so many caste of people living here. So all communities can set up their educational institute to preserve and develop their own culture. तो ये जो आपकी जितनी भी कम्युनिटीज हैं, दे आर फ्री टू सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर. क्लियर. उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, तो यू आर फ्री टू मूव टू कोर्ट. आप कोर्ट में जा सकते हैं. इवन यू कैन गो टू कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो, अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑल्सो, इफ द राइट्स आर वायलेटेड बाय दीज पीपल. क्लियर. एंड दीज राइट्स आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन.
So all these rights, it is very very important for the overall development of human beings. Clear? उसके बाद fundamental duties. Some fundamental duties are also there to perform. These duties are not given in your book, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इसको भी बताना चाहिए, ठीक है? Because जब हमें rights मिलते हैं तो in return we have to perform some duties also. Number 1, to respect national flag and anthem. This is our moral duty. We are the citizen of India, so we have to respect our national flag and anthem. Then maintain and preserve public property. जैसे हम अपने घर में प्रॉपर्टी को मेंटेन और प्रिजर्व करके रखते हैं, सो दिस इज आवर ड्यूटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द कंट्रीज या पब्लिक प्रॉपर्टी, या जो कंट्री की प्रॉपर्टी है उसको प्रिजर्व करना, ठीक है? कई बार कर्फ्यू में क्या होता है, बसेस जला देते हैं, बिल्डिंग जला दी, बैंक जला दिया, तो ये सब नहीं होना चाहिए. ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो भी अपनी प्रॉपर्टी की तरह हमें मेंटेन करना है. दिस इज आवर मॉरल ड्यूटी. And promote to spirit of brotherhood. It is so important because so many type of communities are living here. So this brotherhood, bhaichara, is very important to provide the harmonious condition in the country. Harmonious way में हम लिखेंगे रहेंगे तभी हम कंट्री में डेवलपमेंट कर सकते हैं. इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी तभी होगा, ठीक है? उसके बाद प्रिजर्व द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द कंट्री. जो हमारी कंट्री का जो एक रिच हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना इज आवर मॉरल ड्यूटी. सो दीज आर ड्यूटीज वी हैव टू परफॉर्म. एंड वन मोर थिंग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट. तो व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स? These are the directions or the guidelines for the government to make the laws for the country for the benefit of the country. मतलब उनको इस तरह से रूल्स बनाने हैं जो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिट हो, ताकि पॉलिटिकल इक्वालिटी इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बट सोशल इक्वालिटी इज नॉट गिवन. तो हमको हमारी गवर्नमेंट को किस तरह से लॉज बनाने चाहिए जिससे कि हमको सोशल इक्वालिटी भी मिले. सो वो कहलाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट. क्लियर बेटा? नाउ एक बार उसको दोबारा से सम अप कर देते हैं. राइट टू इक्वालिटी मीन्स एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ. ठीक है? इन लॉ के आगे हम सब बराबर हैं. एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इज गिवन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड सम रिजर्वेशन इज गिवन टू SCs, STs एंड OBCs. Then right to freedom means you are free to convey your speech, views and ideas, and you are free to move from one place to another place, and you can settle down in any place of the country. Now right to freedom of religion, what does it means? You can adopt any religion at your choice. जो आपको पसंद है वो religion adopt कर सकते हो. And right to practice and propagate your religion. Clear? And right against exploitation. Clear? Exploitation से बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है? इम्प्लीमेंटेड मिनिमम वेजेस. की मिनिमम वेजेस तो एम्प्लॉयर को देना ही पड़ेगा. एंड बैन द चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबरिंग. सबको उन्होंने बैन कर दिया. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मीन्स ऑल कम्युनिटीज, चाहे माइनॉरिटी में है चाहे मेजोरिटी में है, they can set up their own educational institutes to preserve and develop their own culture. Clear? उसके बाद right to constitutional remedies. It means if someone violated your fundamental rights, you are free to move to court. लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, at the time of emergency all the fundamental rights are violated. जब इमरजेंसी लगती है तो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे नहीं रह जाते, गवर्नमेंट उनको खत्म कर देती है, तो उस समय हम नहीं कुछ भी कर सकते. क्लियर? एंड ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, टू रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एंथम, मेंटेन एंड प्रिजर्व पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रमोट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एंड प्रिजर्व द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ कंट्री. This is the duties या moral duties you can say which we have to perform. And what are the directive principles of the state? These are the guidelines or directions to the government कि how to make the laws for the benefit of the country. Clear beta?
नाउ इन दिस वे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फिनिश्ड। आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया आप मुझे बताएंगे, देन अगेन आई विल एक्सप्लेन यू। आप इसको अगर अच्छी तरह लगा है बेटा, समझ में आ गया है, देन यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।